Good morning, everyone. No problem. Okay, so let's begin. There was some problem with the internet. The meeting was not launching, so that's why I was late. So we'll start the class. I want to remind everybody to write their attendance in the chat box, just their name. Only write your full name, okay? Nothing else. ಆಯ್ತಾ ಮೊಂಟಿವಿ ಮೊಂಟಿವಿ Okay, so yesterday we discussed about the ordinary or general damages. Okay, we discussed two examples regarding the same. Did everybody understand the ordinary or general damages? Yes or no? Should I move on to special damages or do I need to explain it again? Declan ने आपके folder पर If sama if PDF. नहीं खोल रही हो पीडीएफ हमारे ईमेल Okay, so no, since nobody is answering, so I'll just move on. Special damages, compensation for special losses is called special damages. Okay? Compensation is recovered only in special circumstances and if it is brought to the notice of the defaulting party. When a party claims special damages, it has to prove that the other party in the contract knew that the time of ऑनलाइन चल रही है तो कौन making को हमारी शकल देखी contract, वो करती है हाइड at the time of making the contract, that there would be a loss in special circumstances in case of breach of contract. If special damages are proved as a result of breach of contract and it is communicated to the other parties, then special damages will be awarded. Now, this we will understand with the use of this example. Malik agrees to repair the machine of Mr. Sangi so that he would not suffer any losses in the business. Okay, so the contract was between Malik and Mr. Sangi. Malik was going to repair a machine in that Mr. Sangi owned for his business purpose. Okay, Mr. Sangi agrees to pay 5,000 rupees in advance for getting the machine fixed on 10th of July. Okay, so the date was decided that on 10th of July he will fix the machines, Malik, and Mr. Sangi will pay 5,000 rupees in advance before fixing the machine. Malik repaired the machine, but it was not according to the contract. Malik has to pay the cost of the additional repairs which Mr. Sangi will have to make to use the machine to full capacity. Okay, so what happened here? Malik agreed that Mr. Sangi's machine he will repair and it will be in full working condition. But after the repair also, the machine was not fully functional and obviously to Mr. Sangi will again have to get it repaired from someone else. Okay, so we have to pay another repairing fee to some other person or the mechanic who comes to repair the machine, and he has already paid Malik 5,000 rupees in advance. Okay, so here Malik will be responsible to pay Mr. Sangi
the amount of money that he will have to spend to get the machine to be repaired. Okay. Then let's see another example so it will be more clear. Semitech builders promised Mr. Ahuja that they would complete the construction of a house and give possession of it by 1st of January 2008. Mr. Ahuja was living in a rented apartment. This apartment had to be given back to the landlord by December 2007. Okay, so the contract was that Semitech Builders, this is a building contractor, Semitech Builders promised was Mr. Ahuja, मतलब Semitech Builders ने आहूजा मिस्टर आहूजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो एक हाउस बिल्डअप करके देंगे ऑन 1st of January 2008. ठीक है, तब तक मिस्टर आहूजा एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे. उस रेंटेड अपार्टमेंट को खाली करने की डेट लैंडलॉर्ड ने मतलब मकान मालिक ने दिसंबर 2007 डिसाइड की थी. ओके, सो दिसंबर में मिस्टर आहूजा अपना रेंटेड अपार्टमेंट वापस कर देते और 1st of January को उनको अपना नए घर की पोजेशन मिल जाती. द बिल्डर वॉज इन्फॉर्म्ड of this and the agreement was made. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कि मिस्टर आहूजा को अपना रेंटेड अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा ऑन दिसंबर 2007. Okay, so it will be very important for the Semitech builders to complete the construction of the house by 1st of January 2008. And on these terms the agreement was made. Okay, however Semitech builders did not keep their promise. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेट तक completion नहीं किया. However, Semitech builders did not keep their promise. They have to pay a compensation for breach of contract. They also have to pay the rent for another house in which Mr. Ahuja would live while waiting for the new house to be ready. Okay. In addition, the builder will have to pay compensation for relocating Mr. Ahuja to an apartment as Mr. Ahuja has to give back the present apartment to the landlord. तो यहाँ पे जब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में ये डेट मेंशन की गई थी कि दिसंबर तक मिस्टर आहूजा को अपना रेंटेड अपार्टमेंट खाली करके और नए घर में शिफ्ट होना होगा, उसके बाद भी सेमिटेक बिल्डर्स ने क्या किया कि उनका घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पाए. ऐसी सिचुएशन में सेमिटेक बिल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, एक तो उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. गर्ल्स आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम. मैम नॉट क्लियर. ओके, तो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? ठीक है, आई विल एक्सप्लेन कि सेमीटेक बिल्डर्स हमने आई थिंक यहाँ तक डिस्कस किया. सेमीटेक बिल्डर्स ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया. ठीक है, उनको 1st of January को फिनिश्ड हाउस का पोजेशन देना था मिस्टर आहूजा को, बट उन्होंने नहीं कंप्लीट किया अभी तक. तो इसकी वजह से सेमीटेक बिल्डर्स को मिस्टर आहूजा को पे करने पड़ेंगे पैसे. पहली बात तो कॉम्पनसेशन कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया. ठीक है, कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्हें पे करना पड़ेगा. सेकेंड, उन्हें वो रेंट पे करना पड़ेगा जहाँ पर अब जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता, अब कहीं ना कहीं तो मिस्टर आहूजा को रहना पड़ेगा, राइट, क्योंकि पिछला घर तो उन्होंने दिसंबर में खाली कर दिया. अब उन्हें एक नए घर में शिफ्ट होना पड़ेगा दूसरी जगह पे रेंटेड अपार्टमेंट में. ठीक है, तो वहाँ का रेंट जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता उनके घर का, प्लस
शिफ्टिंग की कॉस्ट, ये तीनों अमाउंट सेमीटेक बिल्डर्स को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेंट ऑफ अनदर हाउस एंड कॉम्पनसेशन फॉर रीलोकेटिंग। ओके, तो 3 अमाउंट उसको पे करने पड़ सकते हैं व्हेन स्पेशल डैमेजेस आर Ma'am, your voice is not clear. मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम है आज, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रही है कॉल, सो मे बी इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। Ma'am, your voice is not clear. हेलो, अभी आ रही है आवाज या अभी भी कट रही है? गर्ल्स, अभी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको? स्पेशल Yes, ma'am. डैमेजेस ऐसे केसेस में पे किए जाएंगे जहां पर ब्रीच होने के पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो ये सारे एक्सपेंसेस चार्ज हो सकते हैं, ओके। और अगर तब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया है, उस सिचुएशन में स्पेशल डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू एग्जेम्पलरी डैमेजेस। Exemplary damages are also called vindictive damages. They are awarded by the court if a party has suffered mentally or emotionally due to the breach of contract. The contract makes an exception to the general principle that damages should be awarded only for financial loss due to the breach of contract. The law finds it difficult to compensate for mental pressure or suffering or humiliation of the aggrieved party due to the breach of contract. It usually compensates for financial losses. In exceptional cases, it awards exemplary damages. There are two important matters in which the court awards exemplary damages. These are the following. First, breach of promise to marry another person, and unjustified refusal of banker to honor a check of another person. ओके, तो ये दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे किए जाएंगे। अब एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्या होते हैं? एग्जेम्पलरी डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मेंटली या इमोशनली सफरिंग हुई है ब्रीच होने की वजह से, उसके अगेंस्ट जो कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा उसको हम एग्जेम्पलरी डैमेजेस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम एग्जेम्पलरी डैमेजेस मतलब समझ में आ गया सबको? यहाँ अभी तक हमने जो जो डैमेजेस की बात की है, उन सारे केसेस में जो भी डैमेजेस पे किए जा रहे थे, दे वर ओनली एंड स्पेसिफिकली फाइनेंशियल, ठीक है। बट अभी इस सिचुएशन में फाइनेंशियल नहीं, यहाँ पर हम इमोशनल और मेंटल लॉसेस की बात कर रहे हैं। तो मेंटली जो सफरिंग हुई है ब्रीच होने की वजह से, या इमोशनल सफरिंग जो हुई है अग्रीव पार्टी को ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से, उसके अगेंस्ट डैमेजेस पे किए जाते हैं। और ये हर केस में नहीं, हर कॉन्ट्रैक्ट में पे नहीं किए जाते, ये सिर्फ इन दो केसेस में पे किए जाते हैं, ठीक है। कौन से दो केसेस हैं वो अब हम देखते हैं। First case is breach of promise to marry another person. If there is a breach of contract to marry another person, although a promise has been made, the aggrieved party can claim damages for the person who has broken the promise. The reason for this is that the aggrieved party has been emotionally hurt and has also lost his or her reputation in public. Since it is difficult to measure the financial losses,
In such a case, the court awards exemplary damages. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि a boy and a girl decided to get married. ठीक है, the boy promised to get married to the girl, and after all the preparations have been done, or the news of the marriage has been spread, and invitations have been sent or may not have been sent. ठीक है, मतलब लोगों को इनवाइट कर लिया गया, लोगों को बता दिया गया कि इनकी शादी होने वाली है, एंड आफ्टर दैट वन ऑफ द पार्टी, चाहे बॉय चाहे गर्ल, दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर मना कर देती है मैरिज करने से, ऐसे सिचुएशन में दी अदर पार्टी जिसने मना नहीं किया है वो एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्लेम कर सकती है. ठीक है, अब रीजन क्या है? अग्रीव पार्टी को बहुत ज्यादा इमोशनल हर्ट बर्दाश्त करना पड़ा. ठीक है, ऑब्वियसली एवरीबडी इज हैप्पी व्हेन दे आर अबाउट टू गेट मैरिड. ठीक है, and everybody knows about it, and then all of a sudden if the marriage is cancelled, it causes emotional suffering to the family and to the, especially to the person who has been who was getting married. ठीक है, प्लस उनकी सोसाइटी में रेपुटेशन भी डाउन होने लगती है, या उनको रेपुटेशन लॉस फेस करना पड़ता है. ओके, बिकॉज द सोसाइटी starts talking ill about that person. ठीक है, उनके बारे में बुरी बातें करने लगते हैं लोग, जिसकी वजह से उनको इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, उनको सफरिंग होती है, तकलीफ होती है. ठीक है, इसके लिए कोर्ट एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्लेम करने की परमिशन देता है. ये फर्स्ट केस सबको समझ में आया, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गर्ल्स कनेक्शन लॉस होने की वजह से आप लोगों की चैट भी डिलीट हो गई है, तो आप लोग प्लीज फिर से अपना नाम चैट में लिख दो, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू सेव द चैट. ओके, जस्ट राइट इट वंस मोर, आई क्विकली सेव द चैट सो दैट अब की हमारी चैट डिलीट ना हो. ओके, so everybody write your name, just your full name in the chat. मैम आपने मूडल में वीडियोस अपलोड किए हुए हैं ना? हाँ, हमारी जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं हर दिन का मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उस पर, तो जो जिसने भी क्लास मिस कर दी है या नहीं समझ में आया है वो एक बार और दे कैन गो थ्रू द वीडियो एंड रिवाइज इट. ठीक है, ओके मैम. और जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे किसी भी रीजन से, तो वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. मैम वीडियो में ये पूरे स्लाइड्स है ना? हाँ, स्लाइड्स वीडियो में नहीं, स्लाइड मैंने अलग अपलोड किया है, आपको क्लास प्रेजेंटेशन के नाम से दिख जाएगा, और वीडियोस में मैम सिर्फ क्लास वही स्लाइड्स प्रेजेंटेशन. होंगे. हाँ, और वीडियो में वही स्लाइड्स होंगे जो उस दिन की क्लास में हमने पढ़ी. ओके मैम. ओके मैम, थैंक यू. चलो सेकंड केस हम देखते हैं. अनजस्टिफाइड रिफ्यूजल ऑफ अ बैंकर टू ऑनर अ चेक ऑफ अनदर पर्सन. ठीक है, sometimes the bank refuses to honor a check even though the account holder has sufficient funds in his or her account. This causes loss of reputation to the account holder. The aggrieved party can claim damages from the bank. The smaller the amount that is dishonored, the greater would be the damages. ठीक है, तो अब यहाँ पर इस सेकेंड केस में जिसमें एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे किए जाते हैं, सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कि मैंने किसी को पेमेंट करने के लिए चेक इशू किया. ठीक है, एंड द बैंक डिनाइज टू पे द अमाउंट. ठीक है, मतलब बैंक ने मना कर दिया कि मैं ये पैसा अभी पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे अकाउंट में फंड्स नहीं है. ठीक है, मान लो कि किसी वजह से उनको लॉस हो रहा है, या किसी भी रीज़न से अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, जबकि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है जितनी मैंने पेमेंट करी है उसके लिए, और फिर भी बैंकर क्या बोलते हैं कि वो अभी पेमेंट नहीं कर सकते.
ऐसी सिचुएशन में एग्जेम्पलरी डैमेज पे करना पड़ सकता है, ठीक है। और सेकेंड चीज ये है कि जितना ज्यादा छोटा अमाउंट रहेगा, मान लो 1000 रुपए का अमाउंट है जो वो पे नहीं कर रहे हैं, और एक अमाउंट है 10 लाख रुपीस का, तो 10 लाख रुपीस पे कम एग्जेम्पलरी डैमेजेस लगेंगे और 1000 रुपीस पे और भी ज्यादा एग्जेम्पलरी डैमेजेस लगेंगे, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना, द स्मॉलर द अमाउंट दैट इज डिसऑनर्ड द ग्रेटर वुड बी दी डैमेजेस, ठीक है। तो डिसऑनर ऑफ चेक्स आप लोगों ने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि कैसे कई बार बैंक डिसऑनर कर देते हैं चेक्स को। तो ये दो सिचुएशंस हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि does नंदिनी पटेल want to ask something? She's raising her hand. नंदिनी, आप लोग इतनी हंगामे में बैठ के पढ़ कैसे लेते हो, क्लास अटेंड कैसे कर लेते हो? अगर गलती से भी आप में से किसी का मुंह हट जाता है, अनम्यूट हो जाता है, तो आई कैन हियर सो मच chaos going on. How can you study in such a situation, beta? You should find a quiet place. चलो, ये सारी चीजें सबको समझ में आई, ये दोनों सिचुएशंस जिसमें एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे किए जा सकते हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। Okay. 1 second. I'll just quickly save your attendance. Okay. सो फर्स्ट पॉइंट क्या था, जब अगर किसी ने दूसरे पर्सन से, अगर मान लो कि आपसे किसी ने प्रॉमिस किया है टू गेट मैरिड, ठीक है, एक्स सेज कि आपके साथ वो शादी करेंगे, ठीक है, एंड once the marriage is once both the parties agree, मतलब दोनों पार्टीज ने अग्री कर लिया है कि वो मैरिज के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, ठीक है, एंड इफ आफ्टर दैट एनी वन पार्टी ड्यू टू एनी रीजंस ये बोल दे कि अब मैं शादी नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे लड़की बोल दे या लड़का बोल दे कि मैं शादी नहीं कर सकते आपसे, आफ्टर पब्लिसिटी ऑफ द मैरिज, मतलब दूसरे लोगों को पता चलने के बाद अगर आप ये कह देते हैं कि आप शादी नहीं करोगे, एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, तो ये चीज़ एक क्राइम है और इस चीज़ के लिए आपको एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब क्राइम नहीं, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है। अगर किसी को शादी के लिए प्रॉमिस करके, मतलब आप उनके साथ एज अ रिलेशनशिप में है, एंड देन वन ऑफ द पार्टी सेज कि अब हम शादी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। अंडरस्टूड? अभी समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं टू द फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, ठीक है। तो नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं? नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड व्हेन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, when in a breach of contract the aggrieved party does not have any losses due to the breach. The court, however, takes that this seriously so that such type of breach are not made by the parties. Therefore, they award a small token as compensation to take note of the offence made by the guilty party. A small compensation may be charged so that the guilty party recognizes its mistake, ठीक है। तो nominal damages ऐसे situations में पे किए जाते हैं जहां पर
अग्रीव्ड पार्टी को कोई भी लॉस नहीं हुआ है ब्रीच होने की वजह से, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि हमने जो ए और बी वाला एग्जाम्पल लिया था, जिसमें ए शो यू, हाँ, ये ए और बी वाला एग्जाम्पल लिया था आपने कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए सप्लाई करेगा गुड्स 1000 यूनिट्स 100 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। बट ए ने क्या किया, मना कर दिया कि वो गुड सप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब ब्रीच हो गया है। और हमने देखा था कि अगर मान लो कि बी को जब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो जो मार्केट रेट है वो 125 मतलब बढ़ गया है, तब उसको डैमेजेस पे करने के लिए पड़ते है ना, 25 रुपए एक्स्ट्रा उसको पड़ते 1000 यूनिट्स के लिए। बट अगर ऐसा हो कि रेट ना बढ़े, जितना हमने कॉन्ट्रैक्ट में रखा था उतना ही रेट अभी भी है 100 रुपीज ही, तो ऐसे सिचुएशन में कोई डैमेजेस तो हुए नहीं है अग्रीव पार्टी को ना, कोई लॉस तो हुआ नहीं है ब्रीच की वजह से, तो तब भी कोर्ट डैमेजेस क्लेम करने की परमिशन देती है, ठीक है। बट वो नॉमिनल डैमेजेस होते हैं। नॉमिनल डैमेजेस बहुत ही छोटे अमाउंट होते हैं, कई बार 10-50 रुपए भी डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, नॉमिनल डैमेजेस, ठीक है। तो इतना छोटा अमाउंट रहता है तब भी पे करवाया जाता है, क्यों? सो दैट जिसने ब्रीच किया है उसको ये चीज याद रहे कि आगे चल के अगर आप फिर से ब्रीच करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे भी पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। ताकि जो गिल्टी पार्टी है, जिसने गलती करी है, वो पार्टी अगली बार वो मिस्टेक रिपीट ना करे, ठीक है। तो नॉमिनल डैमेजेस ऐसे केसेस में पे किए जाते हैं जहां पर अग्रीव पार्टी को कोई लॉस नहीं हुआ है ब्रीच होने की वजह से। अंडरस्टूड? Is that clear to everyone? Yes, ma'am. तो we'll stop here. आज हमने सारे टाइप ऑफ डैमेजेस कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब आई हैव अनदर क्लास है 11:40, तो अब रूल्स रिगार्डिंग डैमेजेस हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. चलो, थैंक यू गर्ल्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक, थैंक यू गर्ल्स, विल कंटिन्यू टुमारो। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.